warm welcome to my channel again. I hope you all are doing well. I am Gunjan Singh, your personal mentor to guide you, and today I'll show you the syllabus of English language and literature of class 10th of 2026 to 2027. So basically इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10th का इंग्लिश बोर्ड एग्जाम का सिलेबस. So guys, अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है, so here this video is just only for you. So please watch it till the end. Okay, so let's get start. So as you know already, we have our three sections in our English language literature course: reading comprehension, writing skill and grammar, language through literature. Reading comprehension carries 20 marks, writing skills and grammar also carries 20 marks, and language through literature VIP contains 40 marks. So total our English exams weightage is 80 marks. Okay, and सेक्शन वाइज वेटेज देख लेते हैं एग्जाम में. सेक्शन ए की वेटेज होगी आपकी रीडिंग स्किल जो कैरी करेगा 20 मार्क्स. सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर कैरीज also 20 marks. Language through literature carries 40 marks. Okay, before proceeding further, we got to know about our chapters, which are the prescribed books that you will be reading in your class 10th. It is the most important thing you have to be remember in your class 10th. देखो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, अगर आपको बुक्स की नॉलेज नहीं है, सिलेबस की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं. तो आपको फॉर्मेट देखने से पहले ये देखना होगा कि आपकी कौन कौन सी बुक्स जो हैं क्लास 10th में लगाई गई हैं और आपको कौन कौन से टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं अपनी क्लास 10th में. सो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर वी हैव आर टू सेक्शन. The first is prose and the other one is poem. Okay, so chapters may you will be reading total 9 chapters here in your first flight book for your English subject. First is a letter to God. Second is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Third one is stories about flying. Fourth, from the diary of Anne Frank. Fifth, glimpses of India. Sixth, Mitchell the Otter. Seventh, Madam Rides the Bus. Eighth, the sermon at Banaras. And ninth, the proposal. Next, we jump to our the poem section of the first flight book, and the first poem is Dust of Snow, Fire and Ice. Second one, third one is A Tiger in the Zoo. Fourth one is How to Tell Wild Animals. Fifth one is the Bowl poem. Sixth, Amanda. Seventh, The Trees. Eighth, Fog. And poem 9, The Tale of Custard the Dragon. And the last one is For Annie Georgie. Okay, so Footprints Without Feet is our second book in our class 10th of English subject. So the first chapter is A Triumph of Surgery, The Thief Story, The Midnight Visitor, A Question of Trust, Footprints Without Feet, The Making of a Scientist, The Necklace, Bholi, The Book That Saved the Earth. फुटप्रिंट विदाउट फीट का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है, द बुक दैट सेव द अर्थ. ये भी एक प्ले है. Okay, so total 9 chapters you will be reading in your second book, and 9 chapter you will be reading in your first flight book, and 10 poems you will be reading in your same in your first flight. Okay, so chapters जो हैं, poems जो हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं. Okay, and इसके बाद हम चलेंगे अपने सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स पे. अब इस के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अपने पेपर में देखने को मिलेंगे. Done? So let's begin. Reading comprehension through unseen passage carries a 20 marks. Discursive passage of 400 to 450 words carries 10 marks. And the other one passage, which is case-based factual passage with visual input, statistical data, chart, etc. of 200 to 250 words also carries a 10 marks. So the total length of two passages to be 600 to 700 words. कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन पैसेजेस में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक ही होते हैं, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप कह सकते हैं. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 30 टू 40 वर्ड्स. पैसेजेस के बाद आपको 30 टू 40 वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं. विल बी आस्क्ड to assess comprehension, interpretation, analysis, inference, evaluation, vocabulary. Okay,
Next we jump to our the section B, which is writing skills and grammar, जो कि कैरी करेगा आपके टोटल 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी आपकी क्लास 10th में। एंड गाइस ये सारे जो टॉपिक्स है ना जो आपकी क्लास 10th में आएंगे वो आपको लाइफ टाइम मदद करेंगे आपकी किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने में। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से अपनी ग्रामर को बेस बना के चलना है उसका, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज डिटर्मिनर, tenses, modals, subject verb concord, reported speech. And reported speech, you have the sub topics in it that you will be covering your in class 10th of English grammar to score 10 out of 10 marks in your exam. So, command and request, statements, and questions. Then we jump to are the writing skills. So, आपको writing skills में अपने पेपर पे किस किस में ध्यान देना है, ठीक है। फॉर्मल लेटर, formal letter based on a given situation in 100 to 120 words, one out of two question is to be answered. So guys, खुश हो जाओ, आपको इंग्लिश में चॉइसेस मिलती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उनमें से आपको सिर्फ एक ही को करना होता है। एंड यू गाइस डिसाइडेड योरसेल्फ इन योर एग्जाम सेंटर कि आप कौन से क्वेश्चन में ज्यादा कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल एज अ सेंस कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चन को करने में कि आपके 10 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके इसमें आ सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें अपने एग्जाम में जिस क्वेश्चन में आप ज्यादा श्योर हो, ठीक है, ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि भाई अगर ये मैंने क्वेश्चन करा तो इसमें मेरे एक भी नंबर नहीं घटेंगे। नंबर आपको फुल कैसे लाने हैं, मार्क्स ऑब्टेन आपको कैसे करने हैं, ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट को कैसे याद रखना है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, वो सब आपको मैं बताऊंगी। सो स्टे विद मी विद माई चैनल EduNova Junction, and please do subscribe my channel for more such video and follow me on Instagram as well. Okay, so writing a formal letter based on a given situation. So आपको एक लेटर लिखना होगा जो कि आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होगा, और दो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको फॉर्मल लेटर में से ही, और आपको उन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये कैरी कितने करेगा, 5 मार्क्स कैरी करेगा आपके। सो राइटिंग स्किल्स में भी आपके दो सेक्शन है, फोर्थ है फॉर्मल लेटर का और सेकंड है आपका राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन अ गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ, क्लूज, वन आउट ऑफ टू क्वेश्चन इज टू बी आंसर। यहाँ भी आपको 5 मार्क्स ही कैरी करता है आपका नेक्स्ट पोर्शन भी। और यहाँ पे भी आपको चॉइसेस मिलेंगी, दो क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे, ये ओनली आंसर one out of two question. Okay, next we jump to our the VIP portion, very important portion, which is language through literature, carries a 40 marks in your exams in class 10th in your English subject. RTC. So what do you mean by RTC? Basically it means reference to the context. So आपको फर्स्ट लाइफ में अगर एक चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड, उसमें से आपको एक पैराग्राफ उठा के दिया जाएगा एंड यू गाइस कैरी ऑन विद दिस पैराग्राफ एंड फाइंडिंग द आंसर्स फ्रॉम दैट वन इन योर एग्जाम। ओके, वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ टू ड्रामा प्रोज एंड वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ टू फ्रॉम पोइट्री। तो आपको बेसिकली इसमें दो दो ड्रामा और दो दो पोइट्री दे दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको चैप्टर में से एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको उसमें से उस पैराग्राफ को फाइंड करना है और उसमें से ही आपको आंसर ढूंढ के लिखने हैं। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आंसर पैसेज की तरह जब आप फिफ्थ सिक्स्थ में होते थे कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, उसी पैराग्राफ में आपके आंसर्स होंगे। नो, आपको आंसर लिखने के लिए उस चैप्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो जो पैराग्राफ होता है इट्स जस्ट फॉर एनालाइजिंग द चैप्टर, कि आपको ये समझ में आ सके कि ये किस चैप्टर का पोर्शन है। ओके, सो आपको उसमें अपनी नॉलेज लगानी है, ठीक है, और आपको इसमें इसमें भी चॉइस दी जाएगी, ठीक है, और दो चॉइस आपको इसमें दे दी जाएगी जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। और इसमें अलग अलग चैप्टर में से आपको एक दो प्रोज दिए जाएंगे, तो जिस चैप्टर में से आपको जितना प्रोज में आप
कंफर्टेबल हो, या आप मान सकते हो कि जितना आपको लगे कि हाँ ये प्रोज मैं करूंगा, ये प्रोज मुझे बहुत अच्छे से आता है, या ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आप वही करना. सेम एज विद द पोएट्री एज वेल. ओके, so it contains a 10 marks, 5 marks your drama and 5 marks from your poetry. Then which type of question you will be seeing in your exam? Multiple choice question, objective type questions, same है. Very short answer questions, one word, one sentence, short answer question to be answered in 30 to 40 words, will be asked to assess sentences, analysis, interpretation, evaluation, and vocabulary as well. So next we come to our a very important portion, which is short and very long answer type question, carries a 30 marks in your exam. 4 out of 5 question to be answered in 40 to 50 words from the book First Flight to assess interpretation, analysis, inference and evaluation. So guys, आपको यहाँ पे 5 questions दे दिए जाएंगे और 5 में से आपको 4 questions attempt करने हैं, और 5 और पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से होंगे. ओके, और ये होंगे आपके 12 मार्क्स के. एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स को कैरी करेगा. 2 out of 3 short answer type questions to be answered in 40 to 50 words each from footprints without feet to assess interpretation, analysis and so on. This is same with the footprints without feet, but the major difference is that कि आपको इसमें 3 questions दे दिए जाएंगे and you guys only have to answer 2 out of 3 short answer type questions. Okay, so ये आपके total 6 marks के होंगे, जो कि आपको 2 करने हैं, और 2 क्वेश्चंस आपके पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा. ओके, 1 out of 2 long answer type questions first flight to be answered, same as with the long answer type question. आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक में से ही, और आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, और वो क्वेश्चन आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है. देन सेम एज विद द फुटप्रिंट विदाउट फीट एज वेल. फुटप्रिंट विदाउट फीट में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड यू ओनली गाइस हैव टू आंसर 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन योर क्लास 10, एंड उनकी वर्ड लिमिट होगी 100 to 120 वर्ड्स, एंड द बोथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरीज अ 6 marks. So guys, our syllabus is so lengthy, our exam format is so crispy, एंड शॉर्ट तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत लंबा है. और एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि स्टे विद मी विद माय चैनल एड्यूनोवा जंक्शन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. और अगर आपको टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जाननी है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी आपकी, क्या क्या टिप्स होंगी मैम कि हम इंग्लिश में लगा सकें या हम बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी लगा सकें और हम अच्छे स्कोर कर सकें अपने क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में. इट डजेंट मैटर क्लास 10 कि आपने क्लास 9th में आप एवरेज स्टूडेंट थे या टॉपर थे. क्लास 10th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं और आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है. और इंग्लिश सब्जेक्ट में तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है. ठीक है, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बता दी अपनी वीडियो में. मैंने आपको हाउ टू मेक टाइम टेबल ये बता दिया. क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस मैंने आपको बता दिया विद फॉर्मेट, आपको मैंने बता दिया. ठीक है, देखो, जब हम फॉर्मेट को देख के अपनी किसी प्रिपरेशन की तैयारी सॉरी किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और गोल अगर हमारे दिमाग में सेट होता है कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, सो आपको कोई भी नहीं रोक सकता. इज इट क्लियर टू यू? सो गाइस, stay with me. Please do subscribe my channel for more videos and thanks for watching. Bye bye. Take care of yourself.